Good morning everyone. Jai Hind. Today we are here with class 9 history chapter socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, this is a very important chapter, yet a very difficult one, because most of the students are not aware about most of the things that were going on in Europe during the period of 18th and the 19th century. So in the 18th century there were three kind of groups over there. This was a time where French Revolution was also booming. Okay, so French Revolution का असर आसपास की जगहों पर पड़ रहा था. As we can see in the map, let me just show you a map. Give me a second. Okay, let me just show you a map of Germany. Fine. So this is the map where you can see. This is on page number 30. Okay, so we have countries like Russia, Italy, Austria, Hungary. Okay, the Russian Empire was quite huge. Here we have Germany. Okay, and we have Bulgaria and all these kind of countries. So there were a mix of religious, cultural and social identical people. Okay, so identities were different. Let us come to the point first. Liberals. So who were liberals? These were so-called secular people. They were in favor of individual versus the government. So they backed up individual power in terms of running a country than rather a government. So उनके हिसाब से ऐसा था कि कोई एक विचारधारा वाला व्यक्ति जो है वो पूरे देश पे शासन कर सकता है और वो ही सही होगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्सेस गवर्नमेंट. कुछ पॉइंट्स इनके अच्छे भी थे, जैसे दे वर अगेंस्ट दी रिलीजियस चर्चेस. अब चर्चेस के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चर्चेस के बीच में कोई जो है झगड़ा नहीं था, बट huge wars were between two kind of churches. One were Romanians and one were Catholics. Okay, right now we have Catholics and Protestants. तो इसमें झगड़े काफी होते थे, and because of that what happened कि जो countries थी वो भी पूरी की पूरी एक तरीके से religious countries बन चुकी थी. Okay, we will talk about it later. So they favored the voting system, but in what case? वो उस केस में करते थे जहां पर सिर्फ वो लोग men of property, जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए. उसके अलावा they were strictly against the vote for women in the society. So ये दो केस है उनके आपको देखने के लिए. One is men against property and second is women के against. Then we have radicals. Radicals what? Radicals were people who were actually they were favoring country's population. कि ये जो है ये लोग जो है they were in favor of a government, कि गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी and according to that a country will be ruled. Okay, so but they were more modern in terms where they advocated the women's suffragette, means the right to vote for women. उसके अलावा they were also against that कि आप सिर्फ एबल्ड मेन को यानी कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की प्रॉपर्टी वालों को ही वोट डालने का अधिकार दे, उस फेवर में वो लोग नहीं थे. दे वर टॉकिंग अबाउट वोटिंग राइट्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, टैक्स बीइंग पेड और एज, एज वी हैव सीन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो दोज हु वर पेइंग टैक्सेस they were only allowed to pay to cast their vote. The last was the conservatives. ये कंजर्वेटिव्स थे, ये खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बढ़ करके आए और ये दोनों के ही विरुद्ध में थे, मतलब रेडिकल्स के भी विरोध में थे और लिबरल्स के भी विरोध में थे. इनके अपने कुछ प्लस पॉइंट थे. हालांकि इनकी सोच विचारधारा ये थी कि ये चाह रहे थे कि जो मोनार्क है या जो सिस्टम जो चला आ रहा है सदियों से, इट शुड बी गोइंग टू बी देयर, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड. ओके, नाउ बाय दिस टाइम we see a very great change in the country of Russia. So there were industrial setups being there, and because of this social changes were happening. अब क्या थे industrial changes? सबसे पहला industrial change ये था कि rapid industrialization हो रहा था. उसकी दो कारण था, एक स्टील, दूसरा रेलवे. रेलवे रशिया में काफी हद तक फैल रहा था, उसकी वजह से स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो डबल हो चुका था. कोल का डबल हो गया था, स्टील का क्वार्टरल हो गया था. ओके, सो दिस वाज द रैपिड पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया. इसका एक इल इफेक्ट भी था. इल इफेक्ट क्या था कि क्योंकि ये सोशल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे थे तो देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग इनटू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब. इसका एक सीधा असर पड़ता है सिटी के ड्रेनेज सिस्टम पे, सिटी के अर्बनाइजेशन सिस्टम पे. इतने घर नहीं थे, इतनी जगह नहीं थी, डॉर्मेटरीज होती थी बड़ी बड़ी, उसके अंदर लोग सोया करते थे. लोग अपने रिलेटिव्स को अपने साथ नहीं रख सकते थे, गांव में अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आते थे और वो यहाँ पे आके रहते थे. ओके, सो इसका एक इफेक्ट ये था. वेजेस काफी लो थी
वर्किंग आवर काफी बड़े, कई कई जगह 10 से 12 घंटा तो नॉर्मल था, कई कई जगह इट वाज अराउंड 16 आवर्स अ डे, और वेजेस बहुत लो थी। एक और हमें यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलता है, वेयर वी कैन सी द वुमेन वर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल, एट सम प्लेसेस दे वर पेड हाफ एंड व्हाइल अदर प्लेसेस दे वर पेड एज लो एज 1/3 एज कंपेयर्ड टू द मेन। उसकी एक बहुत बड़ा रीजन था कि एट दोस टाइम द वर्क वाज क्वाइट मैनुअल, ओके, इट रिक्वायर्ड योर मसल एफर्ट। राइट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। आजकल लोग फेमिनिज्म के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आजकल वक्त बदल गया है। टीचर्स एज यू सी, मैं हूं या कोई एक फीमेल कंटेम्परेरी टीचर हो मेरे साथ, हम दोनों को इक्वल पे मिल सकता है, हो सकता है द फीमेल इज गेटिंग मोर देन मी बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, सो दैट इज वेरी ओके विद अस इन टुडेज वर्ल्ड, बट एट दैट टाइम दैट वाज नॉट द केस, surely, okay, so there was always the women's were downtrodden। इसके अलावा हमने देखा women's were not given right to vote। आजकल we have right for the women to vote also, and also we have one more thing, the reservation for women and the girls in every sector, almost every sector। If you talk about school, if you talk about college, if you talk about even the parliament of the country, it has special reservation for the women, okay। So this was a change that is going to be there in the whole Russian and the European countries। एक और important बात यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडियाज निकल कर क्या 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 आइडियाज निकल कर क्या है। हमने लिबर्टी देखा, फ्रेटर्निटी देखा, इक्वलिटी देखा, जस्टिस देखा, ये सारे आइडियाज पूरे के पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टडी किया था क्योंकि लुई 16 के वजह से आसपास के राजा घबरा गए थे, क्योंकि इफ ही वाज गोइंग टू फॉल द सेम मॉडल कुड बी अडॉप्टेड बाय द पीपल ओवर देयर कंट्री आल्सो, तो दे कुड आल्सो प्रोटेस्ट इन द सेम वे। इसी का फायदा उठाते हुए एक नई पार्टी भी बनी, ओके, इसी का फायदा उठाते हुए एक नया आंदोलन ने जन्म लिया। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस की बात करना जरूरी है, बिकॉज ये समय था जब काफी वर्कर्स आ रहे थे, तो ट्रेड यूनियन बनते जा रहे थे, और इन ट्रेड यूनियन के साथ साथ इतनी ताकत आ रही थी कि ये सरकार बना सकते थे या बिगाड़ सकते थे। सो दिस इज व्हाट यू हैव इन योर topic 1 of this lesson, okay। We will continue this video in the next part where we will speak or we will discuss about the later part, okay। For any doubts and information, contact me, the link is in the description। Jai Hind, Jai Shri Ram।